السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی قیمتی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہیں۔ شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے۔ دوستو، آج آپ کو تمکو ڈسٹرکٹ کے سرا کی سیر گھر بیٹھے کروانا چاہتا ہوں۔ یوں تو سرا مشہور و معروف ہے تاریخی پنوں میں۔ شروعات کا حصہ یہ دکھا رہا ہوں۔ آپ بنگلور سے آؤ یا تمکر سے آؤ، یہاں پر ایک بہت بڑا سرکل ہے جسے درگاہ سرکل کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک یہاں پر مسافر اترنے کے لیے بسیں بھی یہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا ڈسٹینس اس ویڈیو کے اوپر ہی ڈالا ہوا ہوں۔ شروعات کے حصے میں یہاں پر خطبہ سرا جو حضرت ہیں ان کی سوانح حیات یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کے وقت 1630 سے لے کر 1650 تک یہاں پر حضرت ملک ریحان پاشا رحمۃ اللہ علیہ ایک صوبے دار یعنی گورنر کی حیثیت سے یہاں پر خدمت کی۔ کئی خدمتی انجام انہوں نے دیے، یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ شروعات کا حصے میں ایک قدیم املی کا پیڑ آپ کو بآسانی سے دکھ جائے گا۔ یہ تو قدیم ہے، پھلدار بھی ہے، سایہ بھی دے رہا ہے، ہوا بھی دے رہا ہے۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کسی کی مدد کیا کرو۔ کون رہتا ہے یہاں پر صدا کے لیے؟ پھلدار کے نصیب میں تھے پتھر کا چوٹ کھانا، پھلدار کے نصیب میں تھے پتھر کا چوٹ کھانا، یہ حوصلہ افزائی نہیں تو اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی جہاں جہاں نظر پڑتی ہے وہاں پر کئی خبریں آپ کو بآسانی سے دکھ جائیں گے۔ یہ سلطنت کے سپاہی تھے، سپاہ سالار تھے اور دوسرے جو مشہور عہدوں پر اس وقت میں خدمت کیے ان کے مزارات آپ کو دکھ جائیں گے۔ شروعات کے حصے میں آپ کو وہاں پر شاہی دروازہ دکھ جائے گا۔ پورے قبرستان کے اطراف اکناف ایک بہت بڑا قلعہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ گر گیا ہے۔ فی الحال سامنے کا دروازہ عرس کے دن وہ کھولا جائے گا۔ یہ دیکھیے خطبہ سرا حضرت ملک ریحان پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک سامنے سے آپ کو دکھانے کی چھوٹی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دھوپ بھی اپنی نورانیت زمانے والوں کو دکھا رہی ہے۔ کتنے لوگ آئے یہاں اپنی بولی بول کر چلے گئے۔ اس لیے چھوٹی سی زندگی میں ادب اور احترام سے رہ کر شخصیت بن کر اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ بھی آپ کو دل سے دعا دیں گے اور اللہ بھی آپ کے ہر کاموں پر ناز کرے گا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے پورا کام درگاہ کا گرانائٹ پتھروں سے کیا گیا ہے، جیسا بیجاپور میں کیا گیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے خطبہ سرا حضرت ملک ریحان پاشا کا رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا راہ خدا کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا راہ خدا کا۔ کہہ دو زمانے سے کیوں نثر و مستی میں بیٹھا ہے، زہر پی کے جینا ہے تو جی عاشقوں کے آستانوں میں۔ ولی اللہ کو انکار نہ کرو، یہ تو اللہ کے دوست ہیں، فیض پانے کے لیے آپ وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ ولی اللہ صرف سفارش کرتے ہیں، دینے کا حق ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ آپ کے مزار مبارک کے پاس ہی میں آپ کے دور میں ہی آپ نے ہی نماز ادا کرنے کے لیے ایک وہاں پر مسجد کی بنیاد بھی ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عیدگاہ بھی وہاں پر ہے۔ یہ تو سرا 50 مکان 50 مساجد کے لیے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔
बीजापुर के बाद यहाँ पर कई औलिया अल्लाह जेरे आराम फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो। दूर से ही दरबार दिखा रहा हूँ, मशहूर ही मारूफ हैं। एक गवर्नर की हैसियत से आपने यहाँ पर हुकूमत संभाली, खिदमत की, कई खिदमती अंजाम दिए और एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। इसलिए जिंदगी छोटी है, नेकी करने में देर ना करो। जिंदगी छोटी है, नेकी करने में देरी ना करो। मौत कब कहाँ आ जाए किसी को पता नहीं है। माशाअल्लाह यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सामने कहाते में वहां पर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो छोटी बेटी 7 साल की थी, इस वली अल्लाह के यहाँ इन्होंने कुरान की तिलावत की, इन्होंने तरबियत ली। माशाअल्लाह आपकी जहां जहां नजर पड़ती है वहां वहां पर खबरें ही खबरें आपको नजर आ जाएंगे बआसानी से। इसलिए इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में खिदमत के साथ साथ मसाजिदों में भी अपना हाथ बटाएंगे तो आइनवाइश होगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। माशाअल्लाह सूरज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। कितने मतलबी हैं देखो लोग, कितने मतलबी हैं देखो लोग, वक्त आने पर किसी के साथ नहीं आते। ये देखिए अप्रैल और मई के महीने में हर जगह पत्तों के पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ आपको पेड़ ही पेड़ नजर आ जाएंगे। बिना मतलब के कौन किसको जाने, बिना मतलब के कौन किसको जाने। जब शजर पर पत्ते नहीं रहते, परिंदे भी बसेरा नहीं करते। माशाअल्लाह आपकी जहां जहां नजर पड़ती है वहां पर खबरें ही खबरें आपको नजर आ जाएंगे। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। माशाअल्लाह ये देखिए कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। माशाअल्लाह नमाज अपनी जिंदगी में अदा करो दोस्तों। नमाज ही बेहतर साथी है, आपको खबर से हश्र तक, हश्र से जन्नत लेके जाती है। नमाज के साथ साथ खिदमती अंजाम भी होना जरूरी है। कौन रखेगा हमें याद इस दौर फानी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, बस याद है तो काफिरों के गाने, बस याद नहीं तो खुदा की हमदो सना। दोस्तों छोटी सी जिंदगी में किसी का कोई यहाँ पर भरोसा नहीं है। मौसम, लोग, वक्त बदलते जाता है। इसी तरह कब कहाँ कैसे बदल जाए ये किसी की समझ में नहीं है। इसलिए छोटी सी जिंदगी में हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। हजरत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आए, गवर्नर की हैसियत से हुकूमत की कई खिदमती अंजाम दिए और अपनी करामत दिखाकर एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। इन्होंने अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। माशाअल्लाह इन्होंने छोटी सी जिंदगी में 13 साल यहाँ पर हुकूमत की। बीजापुर से आप हिजरत करें, एक वली बनकर चले गए। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। खुद के लिए इन्होंने एक मकबरा बना लिया और उसके साथ साथ मस्जिद की भी बुनियाद भी डाली और इस ईदगाह, शाही ईदगाह की भी इन्होंने बुनियाद डाली। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है, आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ है। काश इंसान का दिल भी साफ हो जाता तो बेहतर होता, क्योंकि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल।
सजदों में घंटे पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। माशाअल्लाह उस वक्त इन्होंने इस ईदगाह की भी बुनियाद डाली। यहाँ पर साल में 2 मरतबा बकरीद और रमजान की ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जाती है। कदीम शाही ईदगाह है। इससे पहले हमने और एक जो एशिया का बहुत बड़ा ईदगाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बनाया गया था। इसके पहले के वीडियो में हमने इसकी तारीख भी डाली हुई है और पूरा मंजर आपको दिखाने की छोटी कोशिश की है। ये दूसरा ईदगाह है, ये सबसे पहले बनाया गया ईदगाह है जो हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसे बनवाया था। माशाअल्लाह पूरा ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। उस पर चूने के गारे से प्लास्टर किया गया है जो सालों साल आबाद रहते हैं। लगभग 350 साल हो चुके हैं। ये आज भी वक्त के साथ साथ अपनी नूरानियत के साथ साथ अपनी काबिलियत की शनाख्त जमाने वालों को करवा रहा है। माशाअल्लाह इस वक्त यहाँ के जिम्मेदारों ने सफेद रंग और हरा रंग भरकर एक दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं। माशाअल्लाह ये देखिए कितनी नूरानियत है। देखो कदीम इबादत गाहों में माशाअल्लाह कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोलकर चले गए। माशाअल्लाह यहाँ पर 2 ईदें अदा की जाती हैं साल में और ये पाक और शफाफ है। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप एक दिन वक्त निकाल कर, रास्ता भी बहुत पाक है, होटलों का भी अच्छा निजाम है, उसके साथ साथ आने जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन आप इस सिरे की सैर कर सकते हैं। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो कदीम इबादत गाहों में यहाँ पर शुरुआत में फतेह मोहम्मद, नवाब हैदर अली खां, उसके साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ हजरत मलिक रेहान पाशा यहाँ पर हुकूमत किए गए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। आज के लिए इतना ही बस। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने कदीम चीजों की तरफ। अल्लाह हाफिज।